देखिए, पहले तो थोड़ी गैर जिम्मेवारी की बात जो कर रहे हैं गवर्नमेंट्स, इनको ज़रा समझना चाहिए कि क्या हालात हैं हमारे आर्थिक पंजाब का, कि सिर्फ वोटें लेने के लिए आप ऐसे बातें करते हो। आप पंजाब का भविष्य, पंजाब के लोगों का भविष्य आप नहीं देख। पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह? किस मेरा हमारा कि मैं अभी बोल के आया हूँ राजपुरा में भी कि हमारी ड्यूटी बनती है कि मैनू दस रही हूँ, मैनू स्टेज ते सारे ने दसी है, कोई ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। तो मैं क्यों जावां राजपुरा, मैं पटियाले ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ 300 ਪੇਜ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਟ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, This is Katra highway? ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ, ਕਟਰਾ ਆਈਟੀਸੀਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਓਨਲੀ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਆਪਣਾ ਮੋਗਾ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਰੌਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ आदरणीय महाराजा अमरिंदर सिंह साहब ते उन्हां दे नाल चल रहे टीम दे ऑफिसर साहबान, लीडर साहबान ते पुलिस स्टाफ, बाकी अपना प्रिंट मीडिया ते रोड संघर्ष कमेटी के मैंबर साहबान, रोड संघर्ष कमेटी के प्रधान सरदार बलजिंदर सिंह सेठपुरा, मैं उपस्थित हाजरीन ते इलाका निवासियों वालों महाराजा अमरिंदर सिंह जी नूं जनाब जदों ये सर्वे होए, नक्शा तैयार होया, स्कीम कंप्लीट होगी, जदों पैसे बनाने लगे अगे उस वैगुरू सच्चे मार्ग की जो बख्शी हुई सानू फतेह है, ओदी सांझ पाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਨੰਬਰ ਜਵਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ SMS ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੰਬਲਫੁਲੀ ਆਪਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓਗੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾਓਗੇ। जिस तरह के भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत 29 स्टेटों के अंदर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ एक पंजाब भी है। इस पंजाब के अंदर 205 समथिंग नंबर है सर, जो सतापड़ पुढे तो उठ के पंजग्राही थाई हुंदी हुई राजो माजरा क्रॉस कर दी है ते उस तो मगरों अंबाला जो हरियाणे च पैंदा है उत्थे बाईपास से टच करती है। महाराज साहब इस दे सर्वे होए हर तरह नाल जो उन्होंने कार्रवाई है सेंटर की वो अपनी टीम भेज के कराई गई। जनाब जदों ये सर्वे होए नक्शा तैयार होया, इसकी स्कीम कंप्लीट हो गई, जदों पैसे बनाने लगे तो रजिस्ट्रियां के हिसाब नाल सर सरकारां ने जो DC रेट है वो घटाए हुए सी, जिस करके जिमीदार रजिस्ट्रियां घट रेट से कराते सी। उस तो मगरों उस छांट रेट से अपने DRO साहब मेजर साहब वो भी फौजी सीगे, उन्होंने सिर्फ एक गल साडे नाल करी कि भाई मैं भी फौज च नौकरी की है ते आप भी फौजी हो, इस मेरा नाम बदनाम ना होवे, अही फेयर है, तुसी किसी दे चक्कर च नहीं आना, ये थोड़ा रेट बनता इन्ना ही। साडा पिंड है जी बरौली सर, महारानी साहब का 22 इंच जानते हैं सर, उस पिंड का रेट अप्रोक्सीमेट 69 लाख रुपया रेट जिहड़ा है डिकलेयर किया सर। 69 लाख डिकलेयर करने तो मगरों सर ये है 5.5 बीघे का, इत्थे रेट सारा किला है साडा 80 विसवे का सर, वो 5.5 बीघे का रेट है सर, 16 विसवे फालतू जमीन जा रही है सर। ते जदों ये रेट होए सानू मंजूर नहीं होए, कट किया गया सर कमेटी बना के, बहुत हल्ला गुल्ला बहुत होया सर। उस तो मगरों जो अपना DC साहब है उन्होंने साडी मीटिंग बुला के लई ते 26 के तहत ये रेट होए सी, वो रेट 26 के तहत फौजी साहब MC है इतों बैठा, इन्हें इनकार करता, अपने राजपुरे का साढ़े बनूक का MC है, इन्हें इनकार कर दिता अपने MLA को कि मैं तो फौजी के नाल जाना, मैं तेरे नाल नहीं चलना। और साडा साबका प्रधान बैठा खन्ना साहब, बड़ा वड्डा परिवार है बनूक का, इन्हां दी पोजीशन भी हुई है। इस करके सर थोड़ी शख्सियत, थोड़ा काम करने का तरीका
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਫਾਰਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਾਇਲ ਹੈ। 2000 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੜ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ 50 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰ ਬਿਗ ਹੋਪ ਔਨ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਸਰ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ पता, ਮੈਨੂੰ नहीं ਸੀ पता कि एक कितना बर्दाश्त होंगी। तो मैंने नहीं कुछ कहा, पर मेरी तरफ से तो बीजेपी में जाए या हमारे आए, हम तो इकट्ठे लड़ना है। आज ट्वीट पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिपोर्ट दबा कर रखी थी, मजीठिया को पकड़ने के लिए अब टीमें बना दी गई हैं, FIR दर्ज। मिस्टर सिद्धू ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਿਸ ਡਰੱਗਸ ਇਸ਼ੂ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਲਡ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ, आई थिंक इज DGP या ADGP, आई डोंट नो, DGP, उन्होंने तो कह दिया कि हमें एविडेंस कोई नहीं, जो एविडेंस है मिस्टर हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट में हाई कोर्ट में होगी। तो किस बेसिस पे पकड़? बीते कल धी पंजाब दी अपना हक जान दी कैंपेन लॉन्च कांग्रेस ने किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? धी पंजाब दी अपना हक जान दी, और डॉक्टर नवजोत कौर की अध्यक्षता में, और AICC की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अलका लांबा। मैं नहीं पढ़ी। आने वाले समय में क्या पंजाब लोग मैं आज पढ़िया नहीं, आई डू नॉट नो व्हाट इट स्कीम है। स्कीम पहला पढ़ना पड़ू, फिर ही मैं रिएक्ट कर सकता। बेदबी को लेकर के कल नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने धरना लगाया हुआ है बेदबी में, जिनको गोली लगी थी, उनका समर्थन करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं और बहुत जल्द बेदबी का भी कौन कहता कि समर्थन नहीं करता? किसने किया था पहले? ये 2015 में ये केस हुआ था, 4 हुए थे, बैबल कला, बरगाड़ी, जवाहर के और कोटकपूरा, और ये इन्होंने अपनी भेज दी CBI को। CBI जब हम आए 217 में, हमने उसको वापस मांगा, CBI ने नहीं दी। फिर हमने मिनिस्ट्री को लिखा, नहीं दी। फिर हाई कोर्ट को गए, हम हार गए। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ से ऑर्डर हमारे हक में हुआ, और फिर भी इस मार्च में वापस आया। कितने मार्च में 9 महीने पहले आया। उसमें मैंने 4 SITs लगाई, 4 SITs ने अपना रोल अदा किया। आज हमारा DGP मिस्टर सैनी, एक परमराज IG और 17 और ऑफिसर्स आज ज़मानत पे निकले हुए हैं इसी बेस पे। सिर्फ एक कोटकपूरा का, क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो गई थी कुछ, SIT में जो बनाई थी, एक IG ने अपने आप ही रिपोर्ट दे दी, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। एक नवी SIT अंडर मिस्टर यादव लगी हुई है, और उसकी भी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। सो कौन कहता है कि इसका सपोर्ट नहीं हो रहा है या कोई समर्थन नहीं किया? अब जो कोर्ट में आ गए तो ना पुलिस का हाथ है, ना मेरा हाथ है, ना किसी का हाथ है, फिर जजेस के पास आ जाती है। और मैं जजेस को नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी ख़त्म करो या ना करो। आम आदमी पार्टी ने भी 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात की, और कल कांग्रेस ने भी महिलाओं से संबंधित अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। क्या आने वाले समय में पंजाब लोग कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को केंद्रित करेगी? देखिए, पहले तो थोड़ी गैर जिम्मेवारी की बात जो कर रहे हैं गवर्नमेंट्स, इनको ज़रा समझना चाहिए कि क्या हालात हैं हमारे आर्थिक पंजाब में। हमारी टोटल आमदन पंजाब की 5,35,000 करोड़ है, जिसको GSDP कहते हैं। और GSDP के हम नॉर्मली एक साल में 3% हम इसका उधार ले सकते हैं, लेकिन हमने कोविड करके 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इजाज़त दे दी है। हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाज़त देती है। अब कंसोलिडेटेड जो 5,35,000 है, आज कर्जा पंजाब का 80% है, और 80% ये जो नौजवान खड़े हैं ना यहाँ, इनको 2 पीढ़ियाँ लग जाएंगी, वो पूरा नहीं कर सकेंगे हम। तो ऐसे ही करना जैसे चन्नी कर रहा है,
30,000 करोड़ पिछले 2 महीने में इसने 3 महीने में इसने एडवांस अनाउंसमेंट्स कर दी। मैं क्या करूँगा? कहाँ से पैसा आएगा? कैसे चलेगी सरकार? हम तो चले जाएंगे यहाँ, ये बच्चे क्या करेंगे? दो पीढ़ियाँ लग जाएंगी इनको कर्जा उतारते। सो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि सिर्फ वोटें लेने के लिए आप ऐसे बातें करते हो। आप पंजाब का भविष्य, पंजाब के लोगों का भविष्य आप नहीं देख रहे। पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह? किस, मेरा, हमारा? नहीं, ये तो बातें हैं जो पार्टी बीजेपी, ढींसा साहब की पार्टी और हम बात पहले जीत जाए फिर बैठ के इसका फैसला करें। ढींसा साहब के साथ अभी समीकरण बन नहीं पा रहा कैप्टन साहब? नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई। 1.5 साल हो गया मुझे मिले मिस्टर ढींसा को। ये इन्होंने डायरेक्ट बात की है होम मिनिस्टर के ऑफ इंडिया की, अमित शाह जी से। राणा गुरजीत सिंह अमित शाह जी ने मुझे कहा है कि अमित शाह जी ने कि हम उनसे बात कर चुके हैं। तो मैंने कहा जो आपने उनसे बात की है हम उसको हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ उसमें कुछ नहीं, और हम बस आपके साथ करें। चलते चलते मैसेज युवाओं के लिए, पंजाब बहुत से युवा हैं जो आपको आइडल मानते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज तो ये है कि अब हमने सब लग के, मैं अभी बोल के आया हूँ राजपुरा में भी, कि हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हम पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज करवाएं। एजुकेशन हमारी अच्छी चल पड़ी। अब प्राइमरी स्कूल्स में अब इंडिया, पंजाब को हिंदुस्तान में नंबर 1 सूबा मानते हैं। राणा गुरजीत दूसरा यार मैनू एक पासे ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ? ਬॉयਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 70% ਪੰਜਾਬ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਖੇਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ मेमोरेंडम ਦੇ ਵਿੱਚ हमने जो धरती पे लग गई, जो आज धरती में बिल्डिंग्स बन रही हैं इंडस्ट्री की, वो 1 लाख करोड़ की लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ? मैं कुछ नहीं कहने लग्या इस ते, क्योंकि मैनू पता है की करनगे, ये बंदियां नू तंग करनगे, और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू फिर दसांगे तुहानू इस ते। ਸਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। तो मैं क्यों जावां राजपुरा? मैं पटियाले लड़ूं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ 300 ਪੇਜ ਕੋਈ ਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਟ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।